خوش شاید بات یہ ہے کہ جنجر کے اوپر کسی بھی قسم کا سکنگ کا اٹیک ہم نے نہیں دیکھا، بالکل نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں۔ ابھی تک کی ہماری 7 سال کی جو ریسرچ ہے اس پہ ہم نے کوئی بھی رس چوسنے والا کیڑا اس کے اوپر نہیں دیکھا۔ اور یہ کتر کھانے والے کیڑے بھی ہیں، جو چیونگ پیسٹ ہیں، وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر آپ نے کسی ایسی جگہ پر اپنا جنجر کے پلانٹ لگا دیں جس کے ساتھ میں مکئی لگی ہوئی ہے، اس سیزن میں مکئی بھی چلتی ہے نا ساتھ میں، تو مکئی کے اوپر اگر آرمی ورم آ گیا ہے، امریکن ورم آ گیا، تو چانسز ہے کہ اس کے جو لاروی ہیں یا اڈلٹ ادھر جا کے بھی انڈے دے دیں یا اس کی موومنٹ ہو جائے، ادروائز اس کا اٹیک وہاں پر بھی نہیں آتا۔ ان کیس اگر امریکن ورم آ جاتی تو فیلڈ کے اندر اس کی اس قسم کی انفیکشن ہے یا علامات ہوتی ہے، پتے کھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو اس کا لاروی بھی آسانی سے نظر آ جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ پیسٹ نہیں ہے، چانسز پہ ہے، یعنی اگر آپ کا کراپ اس جگہ پہ لگی جہاں پر نیبرنگ آپ کی کوئی کراپ ایسی جس کے اوپر اس کا اٹیک تھا، وہاں سے اس کے لاروی موو ہو سکتے ہیں یا اڈلٹس آ سکتے ہیں، ادروائز اس کا یہ بھی پیسٹ نہیں ہے۔ یہ آ جاتا ہے تو مارکیٹ کے اندر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑی سیف ادویات موجود ہیں، وہ آپ نے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لینا ہے۔ اس میں رینج بتائی گئی ہے، والیوم فلیکسی ہے، ڈیلیگیٹ ہے، بیلٹ ہے، کوراجن ہے، رنر ہے، بولٹن کور ہے، ریڈین ہے، پروکلیم ہے، سو مینی ہے، اس کے علاوہ بھی ہوں گے۔ کوئی بھی ایک جو سستا سا پروڈکٹ ہو امریکن کو کنٹرول کرنے والا، آپ کر کے اپنی فصل کو بچا سکتے ہیں۔ لیف رولر یہ اس کا ایک اہم کیڑا ہے جو اس کے اوپر آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کیڑا جو ہے ہم نے ابھی تک نہ ہمیں رپورٹ ہوا نہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ وہ پتا لپیٹ سنڈی ہے، وہ پتوں کو لپیٹ دیتی ہے، اور یہ بڑا ایزیلی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ فیلڈ کے اندر وہ پتے لپٹے ہوئے ہوں گے اور ان کی شیپ جو ہے وہ ڈی شیپ سے ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی لاروی ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ سسٹمک انسیکٹیسائڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر حملہ شدید ہو تو پھر فور ہم کنٹرول کرنے کے لیے کراٹے بھی ریکمینڈ کر دیتے ہیں، کراٹے آپ اسپرے کر لیں فوری سے، تو وہ یہ ایک دم سے آپ کا مسئلہ جو ہے وہ چیک اپ یعنی کہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ باقی سیف ادویات استعمال کر لیں، اس سے بھی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہی ایک کیڑا ہے جو اس کے اوپر آتا ہے۔ ایون دیٹ ہم نے یہاں پر ٹرمائٹس کا اٹیک بھی نہیں دیکھا، ٹرمائٹس بھی اس کے اوپر نہیں آتی۔ پورٹمار کے ریجن کے اندر کیونکہ ابھی آپ لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کوئی منفرد آپ کے ایکسپیرینس ہوں، تو جیسے اگر آپ کو کوئی ایسی کوئی سچویشن سے گزرنا پڑے تو آپ لوگ ہمیں آگاہ کریں، کیونکہ ابھی آپ عامر صاحب بتا رہے ہیں کہ علم 2 وے پروسیس ہے، تو ہم ضرور اس سے کچھ سیکھیں گے اور اس کی مینجمنٹ کریں گے۔ شکریہ۔ اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہو تو میں اسٹیج پر موجود ہوں۔ جی سر۔ ڈاکٹر اقبال صاحب بہت مبارک ہو آپ کو، بہت اچھا ڈائیورسفائڈ کراپ کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، کلائمیٹ چینج میں بھی اس کی فعالیت کافی زیادہ ہے۔ تو میرے ایک دو کوئریز چھوٹی سی، کہ ایک تو یہ بتایا جائے کہ مارکیٹ میں جو ہم ادرک گھر لے کے آتے ہیں اس میں ایسڈ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ ایسڈ کیوں یہ جذب کرتا ہے یا اس کو کیوں ٹریٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اس میں آپ نے ریگولیشن نہیں کی کہ اس کا ہارٹ میں بھی آپ کا فائدہ ہے، خون کو صاف کرتا ہے، اور بہت سارے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور یہ پورے سال کی کراپ ہے، ہر سبزی میں ہر دال میں اس کو ڈالتے ہیں، بجائے اس کے بغیر آپ کا وہ تڑکا نہیں مکمل ہوتا۔ تو یہ ادرک کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو آپ نے ابھی عامر صاحب نے بھی ذکر کیا سوائل کی ٹائپس کا، تو اس میں میری تھوڑی سی ریزرویشن یہ ہے کہ پی ایچ کا لیول پنجاب کی سوائل میں کہیں بھی 6 سے کم نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو کیا ٹرنر فارمنگ کے اندر اس کو سوائل کو اسپیشلی پریپیئر کرتے ہیں، جیسے کہ ہم کر سکتے ہیں کہ ایک حصہ ریت ڈالنی ہے، ایک حصہ آرگینک میٹر ڈالنا ہے اور ایک حصہ لونگ یا سلک ڈال کے تو اس کو پریپیئر کر لیں مائکروسفیئر میں، تو پھر اس کے اندر اس کو کاٹ کیا جائے کیونکہ پی ایچ لیول ایک تھا۔ پھر دوسرا انہوں نے بلک ڈینسٹی کا ذکر کیا کہ بلک ڈینسٹی 1.2 ہے، تو وہ بلک ڈینسٹی کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ جہاں پہ آرگینک میٹر بہت زیادہ ہوگا وہاں پہ یہ بلک ڈینسٹی ہوگی۔ تو پاکستان کی سوائل کی خاص طور پہ پنجاب کی جو سائل ہے وہاں پہ آرگینک میٹر اسٹیٹس بہت کم ہے، اور یہ 2-3 چیزیں ہیں جس کے اندر آپ اس کو ایلیبریٹ کرتے ہیں آڈینس کے لیے انفارمیٹیو
बहुत शुक्रिया, आपने ये पॉइंट रेज किए। पहली बात तो ये कि अदरक की इम्पोर्टेंस पे जो किसी को कोई शक नहीं है, वो पहला फिक्र ही यही कहा गया है इसमें कि इसकी इम्पोर्टेंस है। इस वक्त जो हमारा हम जो सेमिनार अरेंज कर रहे हैं वो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे। अब अदरक ये आज से पहले या कुछ सालों से पहले पाकिस्तान में नहीं था, कास्ट नहीं हो पा रहा था उसकी सही हमें, क्योंकि जब प्री पार्टीशन आप ये देखें क्या सही अदरक हम इस्तेमाल कर रहे थे, फिर बांग्लादेश में भी लग रहा है, लेकिन जब से बांग्लादेश अलग हुआ फिर हमारे हिस्से में जो पाकिस्तान आया उसमें ये अदरक नहीं काट हो रहा था। अब ये पिछले कुछ सालों की स्टडीज के बाद हमें पता चला, जो आपने फरमाया कि एसिडिक साइड जो है ना वो इसके लिए जरूरी है, और हम जो टनल और ये कोशिश कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि उसको हम एसिडिक रखें। उसको एसिडिक रखने के लिए मुख्तलिफ पैटर्न्स आपको बताए गए कि इस तरह से आप करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है, ये लाजम आइटम है उसमें, और इसमें एबिलिटी रेज करनी है आपने। 3-4 चीज़ें बुनियादी सी बताई उन्होंने आमिर साहब ने कि ये बुनियादी चीज़ें जो हैं वो अगर आप कर लेते हैं तो आप प्रोडक्शन में कामयाब हो जाते हैं। जहाँ तक इसकी अफादियत का है तो ये कावा भी इसी चीज़ की कड़ी थी कि आपको खिलाया जाए जिंजर के हवाले से, क्योंकि इंडिया में आज भी आप देखें वो जो है ना उनका लाजम आइटम है कि कोई आपका गला खराब हो रहा है, आपके हार्ट बीट तेज हो रही है, ये तो वो जिंजर का जो है ना वो कावा बना सकते हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है कि इसकी इम्पोर्टेंस। तो बाकी जितनी भी और चीज़ें जो है ना वो इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करके मज़ीद आपको आपसे भी रहनुमाई देंगे और हम इससे प्रयोग करेंगे। बाकी साहब जो आपने बात की है कि वो उसको ट्रीट करके वो मार्केट के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, वो माफिया सरगर्म है। उसका पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक तो वो उसका वजन बढ़ जाता है, दूसरी वो शाइनेस आ जाती है। तो एज अ डिपार्टमेंट हम ये रिकमेंड करते हैं कि कभी भी आप जो रॉ जिंजर है जो मार्केट से आप लेते हैं उसको रॉ इस्तेमाल ना करें, काट के रखें, 20 मिनट के लिए पानी में डिप कर दें तो कुछ ना कुछ उसके जो है वो मुद्र असर जो है वो कम हो जाएंगे। बाकी कुकिंग के अंदर हमारे वो उसके असर जो है वो कम हो जाते हैं। इंशाल्लाह ये जो हमारे इनोवेटर फार्मर यहाँ पर बैठे हैं, जब ये हमारी काश्त बढ़ जाएगी और इसकी बल्क हमें आनी शुरू हो जाएगी तो ये माफिया अपने आप ही दम तोड़ जाएगी, और हमें जो है वो हेल्दी जो है ना मटेरियल वो खाने को भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो हमारी ये जान छूट जाएगी वो फॉर्मेलिटी ट्रीटेड सीड से, और ये जो एसर ट्रीटेड जो है हमें जिंजर मिलता है उससे हमारी जान छूट जाएगी। शुक्रिया सर। पुरानी मारुति जो गाड़ी है ना उसी पे इत्तेफाक करें, इसको इम्प्रूव सर उसको राह मत खाएं, बस ये है, उसको राह मत खाएं। डॉक्टर साहब मैं 2 साल से मेरा नाम इमरान है जी, तीसरे साल में जा रहा हूँ। पहले साल जब मैंने लगाई थी अदरक उसमें एक कीड़ा आया था जिसको मैंने फिर डॉक्टर आमिर साहब से हमने आपस में डिस्कस की, उसका नाम उन्होंने ग्रे वीवर छोटा था। तो वो 2 साल से वो आ रहा है, पिछले साल भी आया और उससे पिछले साल भी आया। वो कोंपल के बीच में आता है और सुराख करके पत्ते कट करता है। और ये डिजीज जो है, ये जो कीड़ा है, इसके ऊपर 2-3 स्प्रे मैंने जो है वो इस्तेमाल किए, लेकिन गोल्डन का सबसे अच्छा रिजल्ट जो है वो गोल्डन का इसमें जी। इसके अलावा जो पिछला साल था उसमें लश्करी का अटैक भी आया, और मेरी दोनों साइडों में कोई फसल नहीं है, मेरी क्रॉप के साइड खाली जगह थी, तो लश्करी का अटैक भी इसमें फर्स्ट स्टेज पे आया था। ये दोनों चीज़ें जो है ये आप ही नोट करें, इन कीड़ों का अटैक जो है वो ग्रे वीवर का तो 2 साल से मुसलसल आ रहा है, लेकिन लश्करी का पिछले साल आया। कोई ऐसी दवाई रिकमेंड करें जिस तरह हम पहले डाल लेते हैं धान में या और चीज़ों में दानेदार या कोई स्प्रे, अटैक को हम पहले रोक सकें। ये इस बारे में हमें थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन दें कि अटैक होने के बाद स्प्रे करने की बजाय हम उसका पहले जो है वो इकदाम करें भी ये कीड़े जो हैं ये पहले फसल में ना, जब आ जाते हैं फिर स्प्रे शुरू होता है तो उसमें स्ट्रेस में फसल भी जाती है और नुकसान होता है। देखिए जब कोई चीज़ डिजीज आती है ना सर, जो है वाला मैदानी इलाके डिजीज़ के लिए हम लोग ये कहते हैं कि प्रिवेंटिव अप्रोच अपना लें, लेकिन जब इंसेक्ट आता है तो उसके लिए हम प्रिवेंटिव अप्रोच कभी भी रिकमेंड नहीं करते। वो हमने हमेशा उसके नुकसान की शिद्दत या उसका EPL देखने के बाद ही जो है वो स्प्रे रिकमेंड किया जाता है कीड़ों के हवाले से। जैसे अभी आपने कहा जी ग्रे वीवर, वो मेरे जहन से गुजरी थी, मैंने उनको रिकमेंड किया था कि आपको वो बोल्टन रिकमेंड कर दें, तो आपने उसका अफादियत देखी, उससे वो कंट्रोल हो गया।
लश्करी सुंडी और ख़ास तौर पर ये जो आपका इलाका है वो मकई के इलाका बड़ा मशहूर मरूफ है, वहाँ पर रफान वालों का बहुत बड़ा प्लांट भी लगा हुआ है, इर्द गिर्द आपके वो लगती है। फॉल आर्मी वर्म जो दूसरी, इसका जो मौत होता है ना, जो अडल्ट होता है, उसकी फ्लाइंग पावर बहुत ज़्यादा है, काफ़ी दूर तक उसकी रेंज है। तो हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा अडल्ट जो वहाँ पर आपके पास आ गया हो और उसने वहाँ पर अपने एग लेन कर दी हो, जिससे ये इन्फेक्शन आ गई। तो मैंने कहा ये चांसेस पे हैं, ये इसका मेन पेस्ट नहीं है। अभी आप ग्रे वीवर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारे पास दूर दराज से इलाके से भी बंदे आए हुए हैं, उनका ये मेन पेस्ट नहीं है। लीफ रोलर आप हर जगह देख सकते हैं, ठीक है जी, वो उसके हाथ जगह पर कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ इन्फेक्शन आ जाएगी। अगर आर्मी वर्म आ भी जाता है तो वो तो बड़े आसानी के साथ जो है ना उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी बड़ी अच्छी इंसेक्टिसाइड मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन ये कभी भी हम रिकमेंड नहीं करते कि आप उसको प्रिवेंटिव ही काम शुरू कर दें। प्रिवेंटिव काम करेंगे तो इंसेक्टिसाइड का असर होता है 3 से 5 दिन तक, उसके बाद वो बेअसर हो जाती है। अगर इसके बाद कोई आपका मौत लीफ के ऊपर आके एग लेइंग कर गया है तो फिर तो आप कहेंगे कि हमने तो प्रिवेंटिव स्प्रे किया था लेकिन उसकी अफादियत नहीं हुई। तो पेस्ट स्काउटिंग क्यों हम रिकमेंड करते हैं कि अपने खेतों के अंदर आप जाएं, पौधों के साथ गुफ्तगू करें, पौधे आपको अपना प्रॉब्लम खुद ब खुद बताते हैं। तो अब जब अगर आपने एक पौधे के ऊपर भी लश्करी सुंडी देख ली है या उसका एग लेइंग देख ली है, तो आप फौरी से मैच का स्प्रे कर दें, बोल्टन का स्प्रे कर दें फौरी से। वो एक ही उसका जो फल एग्स का क्लस्टर है उससे उसने भी फैलना होता है आगे, आप उसको ख़त्म कर दें। अगर इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करना चाहे तो वही इन्फेक्टेड लीव वहाँ से उतार लें और उसको बाहर जाके उसको अपने पाँव थले रोन दें या उसको किसी जगह पर फेंक दें, अंडरग्राउंड कर दें, अपने खेत से निकाल दें, ताकि वो आगे किसी भी चीज़ को ट्रांसफर ना कर सके और आपको इंसेक्टिसाइड भी इस्तेमाल ना करना पड़े। तो डॉक्टर साहब ये था कि 3 से 4 दफ़ा तकरीबन मुझे स्प्रे करना पड़ा इसका, ग्रे वीवर का। लश्करी का शुरू में आया, देखा, उन्होंने स्प्रे किया, वो तो खत्म हो गया। लेकिन ये जो है ये 2 साल से मुसलसल, अब तीसरे साल में मैं नहीं जानती, ये पिछले साल, पहले साल शुरू हुआ था और पिछले साल भी इसी के ही अटैक। आपने ना अपने खेत में रेफरी डालनी है इस मरतबा, रेफरी, ठीक है जी, या फिप्रोनिल, या अगर फर्क करें आपकी जर्मिनेशन के अंदर आ गए ना पौधे, तो रीजेंट एक प्रोडक्ट है बायर का, वो आपने डालना है। इंशाल्लाह उससे ये काम खत्म हो जाएगा, आपको पूरे सिस्टम में चला जाता है। ये रेफरी आपने डालना है या रीजेंट। तो ये दानेदार नहीं, ये पाउडर में मिलता है आपको। पाउडर। हाँ जी, ये बायर कंपनी का प्रोडक्ट है, उसमें भी फिप्रोनिल है, रेफरी में भी फिप्रोनिल है। तो आप रेफरी या दानेदार जैसे मकई के अंदर हम डाल देते हैं, वो बोरस को भी खत्म करता है, इस तरह वीवर्स को भी वो खत्म करता है। इसका स्प्रे करना है? नहीं, जो अब आप रेफरी डालेंगे तो वो दानेदार जहर है, वो आपने जमीन के अंदर डालनी है, ठीक है। तो जो रेफरी है आपका, सॉरी दूसरा रीजेंट है, उसका आपने स्प्रे करना है, वो फौरी उसका असर आपको नजर आएगा, आपकी वीवर जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये पहले कर दें जब अटैक आपको नजर आए तब आपने रीजेंट करना है। आप जो है अपने आपके एरिया में जो है आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि आपको ये 2-3 मरतबा ये प्रॉब्लम आपने देखा है, तो जैसे अभी आपने सोइंग करनी है इसकी, ठीक है, उसके साथ ही आप जो है वो 4 किलोग्राम जो है वो आपने रेफरी डाल देंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगी। इसके अलावा जी किसी का और कोई सवाल? शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। हम अभी